going to continue our session on Hadoop architecture. So in previous video we have covered like Hadoop component like HDFS and MapReduce. So inside HDFS we discuss about like three modes of Hadoop, like standalone, like types of cluster, single node and multi-node. Inside a single node, we have two types of mode: standalone and pseudo distributed mode. And inside a multi-node, we have fully distributed environment. Okay, so here we are going to discuss in detail about like what is the services come under HDFS. So I have already opened my terminal. So as I told you that this is my Hadoop. Okay, and we have Hadoop two major component. So I'm just writing, I'm just drawing. I'm not too good on drawing. So this is my HDFS. Okay, and this is my MapReduce. So this is my MapReduce section, MapReduce section. Okay. So these are two major component of Hadoop in Hadoop 1. Okay, in Hadoop 1, if you are talking about if you will jump on Hadoop 2 now, so then there is another component will come, and that component name I hope you know very well already. We discussed. Can you tell me? So that component name is Yarn. Okay, so we will discuss this Yarn also. Inside HDFS, we know very well Hadoop having some services like some daemons which is running like name node, data node, resource manager, node manager. These are the services, and here you can see under HDFS, like basically HDFS deal with the storage part, MapReduce deal with the processing part, and Yarn is generally resource management part, like how many resource to give to this particular job, how many resource give to this particular resource. So I hope you can like differentiate these three component comes under Hadoop. HDFS deal with storage part. I can write, so I can add this thing, storage part. Okay, if I'm talking about like MapReduce dealing with processing, like processing data, how we can do parallel processing and all that. And the Yarn is basically deal with resource management part, resource management part. So generally deal with resource management, how many resource we can go. So but our prime focus on this thing like HDFS. So today and on the next video we will morely focus on this HDFS part, and later on we will when we will start processing data on our Hadoop cluster, so then we will start dealing with MapReduce and Yarn. So here in HDFS, so HDFS is further divide. So HDFS is further divide. There are few services run under this HDFS. So what is the name of these services? The first one is name node. Name node. What do you mean by name node? Like name, metadata. It generally carry the metadata information, and this is your data node. It generally carry your actual data. So that's why we call data node. And the another one is your secondary name node. But when you are dealing with like production cluster now, so in production cluster, like in fully distributed environment, we don't have like secondary name node concept. We have a high level cluster, like HA concept is there, high availability cluster. So we have active name node and passive name node concept is there. So in case if active is down, so then passive start working as a master, and in case once one active is recovered, then again active will work as a master. So there is a HA concept is there in Hadoop 2, but in Hadoop 1 we have single master name node concept is there. Okay, and secondary name node work as providing every 1 hour it will it do some checkpointing kind of thing. It will take all the metadata information and give a one FS image, which is generally called file system image, and it will give take all the edit log and FS image and merge it and give it to a new FS image and send again to name node, and name node again like reboot their system and all that. Okay, so these are the three things we are basically focused. So let's get start. So suppose uh, I'm taking an example. So this is my name node. And I'm taking a 3 data node, 1, 2, and 3.
This is my 3 data node. Okay, and name node is associated with all the data node. Okay, name node is all associated with all the data nodes. So this is my master machine, and master generally carry your metadata information, and these are your data nodes. These are your slave machine, you can say slave 1, slave 2. Okay, this is slave 2. Okay, these are slave machines, and slave machine having what actual data. So what generally during the time of interview, they basically ask you questions like, what is name node, what is the role and responsibility of the name node. So generally a name node, you can see that node is machine. And why we called is name node, because it will take namespace, like it has a information about all the data where is lie, on which data node it is lie. तो मतलब मेटा डेटा के पास मास्टर या बोले तो नेम नोड के पास बेसिकली वी हैव मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन. सपोज अगर कोई भी अपना डेटा है, सपोज दिस इज सपोज आई हैव वन क्लाइंट, मेरा एक क्लाइंट है, दिस इज माय क्लाइंट, एंड he or she want to write data on the cluster of Hadoop. So first they will interact where they will interact, it will interact with the master. So they will interact to a master. मास्टर से बोलेंगे आई वांट टू राइट माय डेटा ऑन माय मशीन. तो मास्टर इनसे पूछेगा भाई विच इज़ द लोकेशन. तो ये सारी कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो आरपीसी कॉल्स होती हैं. ये नेटवर्किंग का पार्ट है, आरपीसी कॉल्स होती हैं. सो दे ये यहाँ पे देगा. पहले मास्टर चेक करता है कि भाई ये जो डायरेक्टरी, ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये सब कुछ चेक करता है मास्टर. वंस मास्टर को अगर कंफर्म हो जाता है ठीक है, तो क्लाइंट वंस क्लाइंट कॉन्टेक्ट विद मास्टर, तो मास्टर क्या करता है, मास्टर के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है. मान लो सपोज दिस क्लाइंट वांट टू राइट देयर डेटा लाइक ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक. जैसे अगर मतलब क्लाइंट को राइट करने हैं अपनी ये फाइल्स हडूप के क्लस्टर में, सो बेसिकली इट विल डील विद मास्टर. सो मास्टर once master confirm ki these files doesn't exist in their cluster, so it will send information, yes you can write. Then once it will get the confirmation from the master side na, so then what happens, so now client directly start writing their so now client directly start writing their data on the master ने बोला कि you can write your a file on slave on data node 1 and data node and their replica you can write on data node 2. So on data node 2. So ये replication policies होती कैसी हैं basically. I'm just open a one another new one. Don't say. So replication policies क्या होती हैं? So जैसे कि अगर मेरा एक रैक है, दो रैक है, undo. So I have a different racks as we know. So सपोज इफ यू आर राइटिंग अ वन फाइल, मैं अगर एक फाइल है, मान लो मेरे पास 3 ब्लॉक हैं ए, आई हैव 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी. सपोज आई हैव अ 3 ब्लॉक्स, 3 फाइल्स मैं कह सकता हूँ, हैविंग अ साइज ऑफ 128 MB, एंड inside it I have small machines. ये सारी machines, these are the small. So replication policies क्या करती है basically, these are the small blocks. So suppose if I am writing a a file, so अगर मैंने a file को यहाँ पे राइट कर दिया है, तो इसकी जो रेप्लिका होगी वो सेम रैक में नहीं होगी. अगर समझ ओरिजिनल फाइल वी आर स्टोरिंग ऑन दिस रैक, सो इसकी जो रेप्लिका होगी ए की, वो किसी दूसरे रैक में होगी, और उसकी जो अनदर रेप्लिका बनी होगी ना, उसी रैक में किसी और मशीन में बनी होगी. दिस इज अ कंसेप्ट. सेम थिंग अगर जैसे बी है, अगर बी भी मेरी अगर यहाँ पे राइट है ओरिजिनली, मान लो इस वाले ब्लॉक में बी राइट है, और उसकी रेप्लिका यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है बी की, और उसी रैक में कहीं तीसरी जगह भी हो सकती है. ये इसका कंसेप्ट है. और ऐसे ही अगर सी है, तो ये ध्यान रखना ये रेप्लिका है, कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि ओरिजिनल फाइल है. इसको अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूँ, बी आर लगा दूँ, तो समझ जाना कि बी की रेप्लिका है. ठीक है, और ये भी एक बी की रेप्लिका ही है, इसको भी आप समझ सकते हो कि बी की रेप्लिका, और ये सब क्या है, ए की रेप्लिकास है. तो आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट. तो ये कंसेप्ट है इनका कि सेम रैक में डिफरेंट जगह पे वो रखते हैं.
एंड ऐसे ही सी का कंसेप्ट है, मान लो अगर सी की फाइल यहाँ पे है, सी की फाइल यहाँ पे, मान लो यहाँ पे एक सी की रेप्लिका है, सी की एक रेप्लिका है, और सेम फाइल सेम चीज़ वहाँ पे भी सी की एक सी की ओरिजिनल फाइल भी रख लो, और एक रेप्लिका वो कहीं पे भी बना सकता है, यहाँ पे भी रख सकता है। सो वाई माई क्वेश्चन टू यू, लाइक ऐसा ये इसलिए करता है, बेसिकली ये इसलिए करता है ये चीज़ है कि इन केस अगर एक भी, जैसे कि अगर मान लो प्रोसेसिंग की बात आई, सपोज इफ वी आर प्रोसेसिंग अ डेटा ऑन दिस ए, अगर मेरे को ए फाइल को प्रोसेस करना है, तो इन केस अगर ये मशीन डाउन जाती है मेरी, तो बजाय दूसरे रैक में जाने से जो नेटवर्क बैंडविड्थ होती है ना, वो ज़्यादा लगती है। अगर आप किसी दूसरे, मान लो ये मशीन डाउन गई और इसकी रेप्लिका इसको इस नोड पे नहीं मिल रही है ना कहीं, तो बजाय, तो पहले वो सबसे पहले अपने रैक में ही ढूंढेगा कि इसकी रेप्लिका अपने रैक में रखी हुई है। तो अगर जॉब फेल हो गई, मान लो ये मशीन किसी भी एन नंबर ऑफ रीज़न इट डाउन, एंड दिस मशीन इज डाउन एट any reason, so it will, what it will start, it will like look the replica of that node on same machine. So once he it will get from this, अगर उसको यहाँ मिल जाता है तो वो यहाँ पे प्रोसेस कर देगा, अदरवाइज इट विल जंप ऑन डिफरेंट। सो यहाँ पे जो नेटवर्क बैंडविड्थ पड़ेगी ना, वो कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू सेम रैक में मूव करने पे। सो दैट इज़ अ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द रेप्लीकेशन। अगर यहाँ पे आप पढ़ोगे, so these are the replica placement policies. So replica here you can see that the example 1 1 and different node, and 2 2 and 2, here you can see, and 3, so different node. Here you can see the large HD means the purpose of rack aware replica placement policy is to improve data reliability, availability, and network bandwidth utilization. So this is the term. So the current implementation for the replica placement policy is first effort in this direction. The short-term goals of implementing this policy are to validate its in production system, learn more about this behavior, and blah blah blah. So large HDFS instance run on a cluster of a computer that commonly spread across, and communication between two nodes in a communication between two nodes in a different rack has to go through switches. मतलब अगर जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर दो नोड को कम्युनिकेशन करना है थ्रू स्विचेस, और जो डिफरेंट रैक में, तो क्या बोल रहा है वो पढ़ो एक बार। सो कम्युनिकेशन बिटवीन टू नोड्स इन डिफरेंट रैक हैज टू गो थ्रू स्विचेस, ये स्विचेस के थ्रू ही होगा ऑन टॉप ऑफ इट। इन मोस्ट केसेस नेटवर्क बैंडविड्थ बिटवीन मशीन्स इन द सेम रैक इज ग्रेटर देन नेटवर्क बैंडविड्थ बिटवीन मशीन इन अ डिफरेंट रैक। सो बैंडविड्थ ज्यादा पड़ती है, अल्टीमेटली कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा। So the name node determine the rack ID. Each data node belongs to the process outline. So this is a Hadoop rack awareness. You can इस लिंक को भी विजिट कर सकते हो, उसमें और भी डिटेल में दिया है कि कैसे रैक अवेयरनेस के बारे में पूरा का पूरा बताया हुआ है, ठीक है। So a simple but non-optimal policy is placed to replica on a unique rack. So this prevent losing data when an entire, अब ये बोल रहा है कि अब सेम रैक में रखने का पर्पस क्या है। तो जब प्रोसेसिंग करने जा रहे हो ना, तो बजाय अगर वो डेटा ऑन अ सेम रैक इट इज लाइक लूजिंग, मतलब अगर ये मशीन लूज हो गई, तो बजाय वो दूसरे में जाने के वो उसी रैक में ढूंढेगा और प्रोसेस कर लेगा डेटा। लेकिन इन केस अगर उस टर्म में देखा जाए कि एक ही रैक में रखने, अलग अलग रैक में क्यों नहीं रखा, तो प्रोसेसिंग को तो हमने बचा लिया कि मतलब बजाय दूसरे नोड में जाने के लिए सेम रैक में ही देख ले डेटा उसका कहाँ रखा हुआ है और प्रोसेस करना स्टार्ट कर जाए बजाय दूसरे में। और दो रैक में रखने का पर्पस क्या है, इन केस अगर मेरा कोई नोड जाता है तो कोई बात नहीं, उसका रेप्लिका रखा है। अगर पूरी एंटायर रैक भी चले जाए ना, पूरी एंटायर रैक भी चले जाए, तो उसका डेटा हमारा दूसरी रैक में रखा है, वी कैन रिट्रीव एंड वी कैन डू दिस थिंग। तो इसलिए अलग अलग रखने का पर्पस उनका यही रहता है। सो वो यही बताना चाह रहे हैं, दिस प्रिवेंट लूजिंग डेटा व्हेन एंटायर रैक फेल एंड अलाउ यूज ऑफ बैंडविड्थ फ्रॉम मल्टीपल रैक व्हेन रीडिंग द डेटा। This policy evenly distribute replica in the cluster, which make it easy to balance load on the component failure. However, this policy increase the cost of write because of write need to transfer block to a multiple racks. Okay, so this is a replica placement policies, and अब देख रहे हो कि जैसे वी हैव 3 फाइल्स, तो उनकी कितनी रेप्लिकास बन रही है, 3 into 3 करोगे तो 9, बिकॉज बाय डिफॉल्ट द रेप्लिकेशन फैक्टर इज 9, और ये कस्टमाइज होता है। HDFS साइट XML में आप जाओ
तो आप चाहो तो इसको आप वो भी कर सकते हो कि मतलब सेट कर सकते हो कि मेरे को रेप्लिकेशन फैक्टर 3 नहीं चाहिए, मेरे को 2 चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। एच डी एफ एस साइड एक्सएमएल फाइल होती है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस है, जिसको आप चेंज करके मतलब कि जिसको चेंज करके आप उसका रेप्लिकेशन घटा भी सकते हो। अब ये जितनी भी फाइल्स होती है ना यार, हर रैक की, हर डेटा नोड की, सो इनका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो नेम नोड के पास होता है बेसिकली। अगर बात करें जो जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो नेम नोड के पास होता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे रखी हुई है। देखो फाइलें तो अपनी डेटा नोडों पे रखी रहती हैं, लेकिन इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, अब इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक नेम नोड जो है, नेम नोड के पास कैसी इन्फॉर्मेशन होगी? एक तो फाइल का नाम होगा, नेम ऑफ द फाइल, किस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी नेम, पहला पॉइंट तो हो गया, नेम ऑफ द फाइल होगी। उसको पता होगा हर एक फाइल के कितने ब्लॉक्स बने, कितने ब्लॉक्स, ब्लॉक इन्फो होगी उसके पास। देन उसके पास रेप्लिका इन्फो होगी, परमिशंस होगी उसके पास कि कौन सी फाइल को क्या परमिशन मिली है, ठीक है। एंड देन इट विल कैरी, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन अगर एक हाई लेवल देखा जाए, अगर यहाँ पे एक डायग्राम जो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, तो हाई लेवल अगर मेटा डेटा देखा जाए तो ये मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे फाइल का नेम, नंबर ऑफ रेप्लिका, ब्लॉक आईडी है, कौन सी रैक में है, क्या है, ये सारा मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन होता है जनरली अगर बात की जाए। जैसे बोलते हैं फाइल सिस्टम नेम स्पेस, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है ना वो नेम नोड रखता है। नेम नोड के पास पूरा मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन होता है। जो एक्चुअल डेटा रिसाइड करता है वो आपका किस में करता है? डेटा नोड्स में करता है। एंड दीज डेटा नोड्स इज जनरली इन रैक्स में होती है, ठीक है। सो नेम नोड क्या है? इट इज द हार्ट ऑफ योर आर्किटेक्चर। ये हडूप के आर्किटेक्चर, इट इज द हार्ट ऑफ द हडूप आर्किटेक्चर। सपोज अगर मेरी कोई डेटा नोड ना चले ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस नोड पे मैं डेटा राइट नहीं कर सकता हूँ, किसी डिफरेंट डेटा नोड पे राइट कर सकता हूँ, है ना। और बेटर है कि अगर वो डेटा नोड ना भी चले तो नेम नोड उसका रेप्लिका बना सकता है। अगर मेरा रिसोर्स मैनेजर ना चले तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जॉब सबमिट नहीं कर सकता हूँ अपने क्लस्टर में, है ना। और अगर मेरी कोई नोड मैनेजर नहीं चल रही तो वहाँ पे टास्क परफॉर्म नहीं हो। लेकिन अगर तुम्हारा नेम नोड बंद हो जाता है ना, तो मीन्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि नेम नोड इज अ सिंगल, मतलब इट इज़ अ हार्ट। तो जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है ना, कोई भी, चाहे क्लाइंट के थ्रू हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो नेम नोड वो है, मतलब मिडिल पॉइंट बोल सकते हो। सो नेम नोड क्या होता है कि मतलब कुछ भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, क्योंकि अगर नेम नोड बंद हुआ, अगर जैसे अभी तुम पूछ रहे थे कि 5 सर्विसेज हैं, इन केस इफ नेम नोड इज डजंट वर्क ना, so you cannot store the data, you cannot submit the job and all these are, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। तो ऐसी केसेस बहुत बार आते हैं कि व्हेन नेम नोड सेफ मोड में चले जाता है, तो हम लोगों को उसको डीबग करना होता है, क्योंकि सेफ मोड का जनरली पर्पस क्या होता है, व्हेन एवर यू आर गेटिंग अ मैसेज लाइक नेम नोड इज इन अ सेफ मोड, सो ये जनरली आपको फेस होता है जब यू आर लाइक स्टार्ट योर क्लस्टर, तो ड्यूरिंग दैट टाइम नेम नोड गोज टू अ सेफ मोड। वो हम प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं आपको, प्रैक्टिकल करके कि नेम नोड ना चलेगा तो उस टाइम पे आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो ना, यू कैन नॉट लोड योर डेटा, यू कैन नॉट प्रोसेस योर डेटा ऑन ऑन दोज क्लस्टर। सो नेम नोड कह सकते हो कि आप बहुत पावरफुल है। एंड द ऑन द अदर हैंड द अदर टूल इज लाइक डेटा नोड। सो डेटा नोड क्या करता है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा नोड, मतलब डेटा नोड की क्या है? तो डेटा नोड जनरली क्या है, आपका डेटा कैरी करता है। जो जितनी भी रेप्लिकाज है ना, ये सब बन रही है, ब्लॉक्स में जा रही है, और बाय डिफॉल्ट ब्लॉक का साइज 128 MB इन Hadoop 2 एंड 164 MB अराउंड इन Hadoop 1। और ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट व्हाई दे इंक्रीज द डेटा नोड, बिकॉज अगर आपने डेटा नोड का ब्लॉक का साइज इंक्रीज करने का पर्पज ही क्या था, इससे क्या होता था, मेटा डेटा कम बनेगा, जिससे कि नेम नोड पे लोड कम पड़ेगा और नेम नोड के क्रैश होने के कम चांसेस होते हैं, ठीक है। सो डेटा नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जनरली दे विल आस्क यू व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा नोड। सो बेसिकली डेटा नोड का पर्पस क्या होता था? इट विल व्हाट इट विल डू, इट विल स्टोर द एक्चुअल डेटा, एंड every 5 or a 10 second of time of interval it will send some heartbeat to name node। वो नेम नोड को एक हार्ट बीट भेजता है कि नेम नोड, यस आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। इन केस नेम नोड डज नॉट रिसीव एनी हार्ट बीट ना, तो नेम नोड सोचता था मर गया, गया है ब्लॉक, उसको डीकमिशनिंग करना स्टार्ट कर देता है, उसका रिट्रीव इंफॉर्मेशन मतलब सब कुछ करने लग जाता है। सो डेटा नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इट विल सेंड सम हार्ट बीट टू नेम नोड, एंड नेम नोड ऑन दैट बेसिस, हाँ वो है। और साथ में अगर उस डेटा नोड पे कोई डेटा राइट हुआ होगा, कोई ब्लॉक होगा, तो वो रिपोर्ट भी भेजता है नेम नोड को कि भैया ये वाला ब्लॉक मेरे पे राइट हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन नेम नोड के पास होती है। तो नेम नोड के पास ना जनरली 2 फाइल्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं।
उन फाइल्स को बोला जाता है, एक तो एडिट लॉग्स बोला जाता है जब आप एडमिन लेवल पे काम कर रहे होगे ना, और एक होता है एफएस इमेज। तो सेकेंडरी नेम नोड क्या होता है, एक टूल और बताया था इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था सेकेंडरी नेम नोड भी होता है हमारा, उस बेचारे को हम भूल ही गए। तो सेकेंडरी नेम नोड क्या होता है, चेक पॉइंटिंग की तरह काम करता है सेकेंडरी नेम नोड। सेकेंडरी नेम नोड क्या करता है एक्चुअली में, क्या होता है कि नेम नोड ना कभी अपने आप को ना क्लस्टर के बारे में इन्फॉर्म नहीं करता है। तो क्या करता है ये सेकेंडरी नेम नोड का काम ही क्या होता है, ये हर एक घंटे में नेम नोड से ना ये दोनों चीज़ें उठाता है, एडिट लॉग एक एफएस इमेज, इन दोनों को उठा के एक नई एफएस इमेज बनाता है। एफएस इमेज का मतलब होता है फाइल सिस्टम इमेज, फाइल सिस्टम इमेज। एफएस इमेज का मतलब होता है फाइल सिस्टम इमेज, और ये नई एफएस इमेज किसको देता है, ये किसको दोबारा इसको दे देता है नेम नोड को। तो नेम नोड तब जाके रिफ्रेश कर देता है। एडिट लॉग्स होते हैं करेंट चेंजेस, मतलब अभी अभी डेटा नोड में ये चीज राइट हुई है, लेकिन नेम नोड को नहीं पता है। नेम नोड को तब पता चलेगा जब सेकेंडरी नेम नोड उसको एक नई एफएस इमेज देगा और बताएगा कि भैया ये ब्लॉक राइट हो गए। अगर आप इसको और भी डिटेल में देखोगे ना, ये रेप्लिकेशन हो गया, ब्ला ब्ला आ गया, रेप्लिकेशन फैक्टर आ गया, ये उसके प्रॉपर्टीज आ गए, रेप्लिकेशन स्पेस, इसमें सेकेंडरी नेम नोड के बारे में बताया नहीं है, इसको क्लोज करते हैं। ये सर एक काम करते हैं, सेकेंडरी नेम नोड के बारे में डिटेल में देखते हैं, सेकेंडरी नेम नोड इन हडूप। ठीक है, तो अगर ये सेकेंडरी नेम नोड इज यूज फॉर टेकिंग द आर्ली बैकअप, ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, गीक्स में बता रखा है। So these are the some sites from where you can learn about more about like Hadoop and all that. So let's consider what is the role and responsibility here. Secondary name node is used for taking the early backup of the data in case the Hadoop cluster fail or a crash. The secondary name node will take the early backup or a checkpoint of data and store this data into a file name fs image, and this file then get transferred to a new system. A new metadata is assigned to the new system and new master is created with the metadata and the cluster is made to run again correctly. So this is the benefit of the secondary name node. Now in Hadoop 2, मैंने बोला ना Hadoop 2 में we have HA concept, ये सेकेंडरी का होता ही नहीं है कॉन्सेप्ट। HA का कॉन्सेप्ट होता है हाई एबिलिटी एंड फेडरेशन फीचर दैट मिनिमाइज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस सेकेंडरी नेम नोड। मतलब वहाँ होगा, दिखेगा सेकेंडरी नेम नोड, लेकिन इसका कंसेप्ट मिनिमाइज हो जाएगा। वहाँ कॉन्सेप्ट आ जाएगा एक्टिव नेम नोड, पैसिव नेम नोड, ऐसा आ जाएगा। एक क्लस्टर में आपके एक से ज़्यादा नेम नोड होंगे। पहले क्या होता था, एक क्लस्टर में एक ही नेम नोड होता था और बहुत सारी डिफरेंट डेटा नोड्स होती थी, लेकिन एचए के कॉन्सेप्ट में एक से ज़्यादा नेम नोड होंगे आपकी, और आप मिनिमाइज कर सकते हो सेकेंडरी नेम नोड के कॉन्सेप्ट को इन हडूप 2। सो मेजर फंक्शन ऑफ सेकेंडरी नेम नोड, देखो ये क्या करता है, इट ग्रुप द एडिट लॉग, जो करंट चेंजेस आते हैं किसी भी डेटा नोड में, और हर एक डेटा नोड क्या करता है, रिपोर्ट करता है नेम नोड को, बताता है कि भैया किसी ने मेरे यहाँ पे राइट कर दिया। तो दे विल सेंड देयर edit log and fs image to a name node together. It continuously read the metadata from the RAM of name node, क्योंकि नेम नोड की रैम में ना ये सारा रखा रहता है, एडिट लॉग और नेम नोड इंफॉर्मेशन, एफएस इमेज, एंड राइट इनटू द हार्ड डिस्क. So as secondary name node keep track of checkpointing in a Hadoop distributed file system, it also known as checkpoint node भी कहा जाता है, इसको checkpoint node भी कहा जाता है. तो ये क्या कर रहा है, नेम नोड पे क्वेरी मारता है, क्वेरी फॉर एडिट लॉग इन रेगुलर इंटरवल. ठीक है, और साथ में क्या करता है, अपडेट एफएस इमेज विद एडिट लॉग, एफएस इमेज जो भी होते हैं, कॉपी द अपडेटेड एफएस इमेज बैक टू द नेम नोड देता है, और ये एफएस इमेज नेम नोड लेता है और अपना इंफॉर्मेशन अपडेट करता है. तो ये एक responsibility है secondary name node की. Okay, so I am taking a pause. So now it's up to you, Anup. Let's start your query. Do you have any questions till here? Means I could not understand that why it is taking data back from the backup things. Means the secondary node that is taking a backup, right, and backup is stored, that's fine. It in case your production is, or you can, the master node is down, name node is down, then we can utilize it, that's fine. But it is coming back to the main node and then writing it. Means after that there will be some delta as well, as per my understanding, how we are managing that part. Okay, so good question. I'll just tell you again. I'm taking a new edit. Okay, so actually what happened, so suppose this is name node. Okay,
and Mhm. we have 1000 name node information. Okay, Mhm. सारी हमारे पास हजार डेटा नोड्स है, 1000 नोड का क्लस्टर, ठीक है, एंड वी आर कंटिन्यूसली राइटिंग दिस डेटा, Mhm. कंटिन्यूसली हम लोग इस पे राइट कर रहे हैं, इन सारी नोडों पे राइट किया जा रहा है डेटा को, Mhm. डेटा नोडों को राइट किया जा रहा है, ठीक है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन राइट हो रही है। Mhm. तो एफएस इमेज क्या होता है? फाइल सिस्टम स्नैपशॉट होता है, जैसे इमेज है एक काइंड ऑफ। Mhm. तो क्या होता है कि अगर मान लो रात भर में बहुत सारा डेटा राइट हुआ क्लस्टर में, ठीक है, और Mhm. सुबह जब हम काम जा रहे हैं तो नेम नोड क्या करता है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशनों को ना अपडेट नहीं कर सकता है, टाइम लगेगा इन सबको, इन सब सारी Mhm. इंफॉर्मेशनों को अपडेट, मतलब इतने सारे चेंजेस आए, एडिट लॉग्स हुए, करंट चेंजेस आए, इनकी इंफॉर्मेशन है, तो नेम नोड Mhm. उसको अपडेट करने में बहुत टाइम लग जाता है, वो डाउन हो सकता है। Mhm. ये क्या करता है, इसको ना रेगुलर इंटरवल में सेकेंडरी नेम नोड उन सबको लेता है और एक नई एफएस इमेज भेजता है, जिसको नेम नोड अपडेट करता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो बेसिकली पर्पस यही है कि लोड ना पड़े नेम नोड को, इतने सारे एक साथ चेंजेस उसके पास आए, इंफॉर्मेशन है। तो Mhm. नेम नोड इसलिए क्या करता है, उसको एक हर हर इट मीन्स प्राइमरी नोड पे कभी भी मतलब स्टेबल डेटा रहता ही नहीं है, राइट? हाँ, वो रहेगा तो सेकेंडरी पे ही, लेकिन वो अपडेट करता रहेगा आपके प्राइमरी को आवरली एग्जैक्टली बेसिस और व्हाटएवर कॉन्फ़िगरेशन वी आर डूइंग, एग्जैक्टली। राइट? अब एक एक बेनिफिट तो ये हो गया कि नेम नोड का हेडेक कम हो गया। अब दूसरा बेनिफिट भी ये रहता है सेकेंडरी नेम नोड के पास, बाई चांस अगर तेरा क्लस्टर गया फुस, हम्म नोड मान ले डाउन चले गया, किसी वजह से हम्म किसी ने क्या किया कि इसका डेटा ही, मतलब पूरा नेम नोड ही क्रैश हो गया, समझ रहा है, हम्म नेम नोड ही हम्म क्रैश हो गया, लेकिन इसकी एक एफएस इमेज तो अभी भी पड़ी हुई है इसके पास, सेकेंडरी नेम नोड के पास, है ना। हम्म 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 तो नेक्स्ट टाइम जब नेम नोड रिट्रीव हो रहा होगा ना, नेम नोड रिट्रीव हो रहा होगा, नेम नोड तो भूल गया कि भैया क्लस्टर में क्या रखा हुआ था, हम्म तो अगेन ये सेकेंडरी नेम नोड क्या करवा रहा होगा, उसको हेल्प कर रहा होगा कि आप ये एफएस इमेज लो और आपको पता चल जाएगा कि मेरे कौन से डेटा नोड में कौन सा डेटा रखा हुआ है। दिस इज अनदर बेनिफिट यू विल गेट विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी नेम। लेकिन करेक्ट इसका करेक्ट गो अहेड। गॉट इट, लेकिन इसका एक और ड्रॉबैक भी है यार, कि ये सेकेंडरी नेम नोड का एक और ड्रॉबैक था। अगर मान ले कहीं 45वें मिनट में कुछ ऐसा हुआ कि ये दोबारा क्रैश हो गया, मान ले किसी और रीजन से, है ना, कर रहा था 45वें मिनट में, लेकिन यार इस 45वें मिनट में कि औरों ने भी तो किया होगा एंट्री, कुछ ना कुछ तो डाला ही होगा, तो वो टाइम की करेक्ट, इंफॉर्मेशन तो गई ना, इसके पास तो आएगी ना, इसके पास है ना, इसके पास। अगले घंटे में आएगी ना वो। हाँ, तो यहाँ पे लैग आ जाता था, तभी तो इस कॉन्सेप्ट को ही मतलब हडूप 2 में मिनिमाइज कर दिया गया था। जब इसको डिटेल में पढ़ेगा ना, देन यू विल गेट आइडिया व्हाई एचए कॉन्सेप्ट केम इनटू द पिक्चर, कि अगर एक नोमनेट क्रैश होता था तो दूसरा वाला वर्क एज अ मास्टर। हम्म तो जब एडमिन लेवल पे तू काम करेगा, एचए का कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, एचए ओके। इन हडूप हाई एबिलिटी क्लस्टर्स, तो यहाँ पे जब ये पढ़ेगा ना, तो फेल ओवर कंट्रोल एक्टिव HDFS नेम नोड। सो इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा नेम नोड का होता है, हडूप एबिलिटी एंड नेम नोड हाई एबिलिटी आर्किटेक्चर। तो इसमें एक से ज्यादा नेम नोड का कंसेप्ट होता है। इससे क्या होता था, डेटा लॉस कम होने के चांस। पहले रीजन भी देगा कि एचए का कॉन्सेप्ट आया क्यों था, द फाइल सिस्टम कैन नॉट बी यूज विदाउट नेम नोड। एचए का कॉन्सेप्ट आया क्यों था, रीजन क्या थे, सेकेंडरी नेम नोड के रीजन, देखो इशू इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंस ऑफ एचए, तो रीजन क्या थे, फेसिंग रीजन क्या थे कि सेकेंडरी नेम नोड के ड्रॉबैक्स क्या थे, देख एक मिनट, सेकेंडरी नेम नोड ड्रॉबैक्स। So HA came. A secondary name node is mandatory for Hadoop cluster. Like what happens when secondary name node fail? ठीक है, तो secondary name node. So these are the daemons and their features. What is secondary name node? So difference between secondary name node and standby name node. ठीक है, so एक ये वाला concept देखना. Okay, so we can see. So ये था in case अगर नेम नोड दोबारा क्रैश हो जाता था या सेकेंडरी नेम नोड डाउन हो जाता था, तो उस एक घंटे की इंफॉर्मेशन थी ना, वो भी हमारे हाथ से चली, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता था।
So name node hold the metadata for the HDFS like namespace, information, block, inverse. So when in all this information is stored in the main memory, but these information also store in the disk of persistent storage. तो यहाँ बता रहा है एफ एस इमेज क्या होती है, इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द फाइल सिस्टम व्हेन नेम नोड स्टार्ट। ओके, तो एक स्नैपशॉट होता है। तो एडिट क्या होता है, एडिट लॉग्स क्या होते हैं, इट इज द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस मेड टू द फाइल सिस्टम आफ्टर नेम नोड स्टार्टेड। ओके, so only it restart the name node. Edit logs are applied to FS image to get the latest snapshot of the file system, but name node restart are rarer in the production cluster, which means edit logs can grow very largely for the cluster where name node runs for a longer period of time. So the following issue will be encountered in this session. Edit log become very large and which will be challenging to manage it. Okay, so name node restart take long time because of lot of changes has to be merged. So in this case of crash, we will lose huge amount of metadata since FS image very old. So to overcome this issue, we need mechanism which will help us to reduce the edit log size. So that's why secondary name node come. Secondary name node help to overcome the above issue by taking over responsibility of merging edit log with FS image. It get the edit log from the name node in regular interval and apply to a FS image. Once it has a new FS image, it copy back to the name node, and name node will use this FS image next restart, which will reduce the startup time. So why secondary name node not needed in HA Hadoop cluster? In HA cluster, the standby name node is also perform checkpoint of the namespace state, and thus it not necessary to run the secondary name node. So checkpoint name node are a backup node in a HA cluster. In fact, to do would be an error. Okay, so I hope you will get the idea like कि secondary name node HA में इसको तब क्यों neglect कर दिया गया। Okay, two question here. First, multiple time we spoke about a namespace in this name node. Means what exactly meaning of the namespace? First question. Second question, okay, let's finish this one and then. Namespace तेरा यार basically ये हो गया, HDFS support a traditional hierarchical file organization. A user or an application can create directories and store files inside these directories. The file system namespace hierarchy is similar to most other existing. जैसे namespace like root directory होती है, inside it we have a folder, then we have inside. इनकी बात कर रहे हैं namespace generally. स्टोरेज नेमस्पेस की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। जैसे यूजर है, यूजर के अंदर सब मेरे उसके अंदर डेटा है, उनके अंदर डेटा है। सो दीज आर द नेम स्पेस जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट, दीज आर द डेटा इंफॉर्मेशन। सो द नेम नोड मेंटेन द फाइल सिस्टम नेम स्पेस, मतलब जितनी भी नेम स्पेस इंफॉर्मेशन वो नेम नोड मेंटेन करता है। Okay. Second question is on your image that you created just before now. That was related to the communication of client to the Hadoop cluster, right? So you mentioned that the client is requesting to the name node first, and then it will decide that where to write and where to read, something like that. So right? Just yes, correct. Okay. Now question comes. How authentication is working when any user is coming, right? If I'm claiming that I'm a client of your Hadoop cluster, then how I will be verified first. Second, once I have a communication with the name node, means is this making any kind of tunnel for it so that directly communication is possible with the data node, or always it has to go by the name node only? Means that should be clear, please. So here you can see that this diagram, write operation in HDFS. Suppose someone want to write the data inside a name node. Okay. Correct. So इस section को पढ़ते हैं, how we can perform the read write operation. Suppose if you want to write your data or read data from some directory, so कैसे operations perform होते हैं. So in this section, understand how data is written into HDFS files. So यहाँ पे एक library होती है जिसको बोला जाता है HDFS client library बोला जाता है. A client initiate write operation by calling create method. ये internally ये सारे method call होते हैं. तो जब भी एक HDFS मान ले suppose तूने एक command लिखी है like Hadoop fs hyphen put या बोल दे copy from local या copy from
एग्री। एंड अपना पाथ दे दिया और तूने हडूप का पाथ दे दिया जहाँ पे तू राइट करना चाहता है। बट ऐसे ही हर कोई तो नहीं लिख सकता ना, राइट? हाँ मैं अगर अपने यहाँ के क्लाइंट से आपके यहाँ के हडूप सर्वर को ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करूंगा तो नहीं काम करेगा, राइट? हाँ। तो कुछ तो उसमें कम्युनिकेशन हो रखा होगा। वो कम्युनिकेशन किस वे में होता है, मीन्स ऑथेंटिकेशन किस तरह से होता है कि मैं ही आपके क्लाइंट हूँ, वेरीफाई प्लीज मी। यार तब तो वो वो करब्रोस इन सब के थ्रू होगा। कर्ब्रोस मैनेज कर रहे हैं आप, ओके। गॉट सिंगल इट। साइन ऑन। हाँ तो वो करब्रोस इन सब के थ्रू होता है यार वो तब। मैं समझ गया, मतलब तुम कह रहे हो कि अगर किसी दूसरे को तुम्हारा क्लस्टर एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकता है ना? हाँ, ये भी एक बात है, खैर मतलब ये इस तरह से भी कह सकते हो आप उसे। हाँ तो यार वो फिर अलग कंसेप्ट आ जाएगा वो पूरा। ओके, मीन्स सो हाउ ऑथेंटिकेशन विल वर्क। वो बहुत यार, वो पता है पूरा सही कह रहे हो। क्लस्टर लेवल पे अभी जाओगे ना और भी डीप जाओगे तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं कि मतलब कैसे हम लोग किस भी यूजर। नहीं, जस्ट कम्युनिकेशन के मैंने ये तो नहीं कहा अभी कि कर्वरोस कर लेते हैं। हाँ मैंने जस्ट समझने की कोशिश किया कि हाँ कम्युनिकेशन के लिए कर्वरोस के अलावा भी कुछ हो सकता है, किस तरह से वो ऑथेंटिकेट करता है। ऑथेंटिकेशन होने के बाद में सेकंड क्वेश्चन था कि हाउ टनल इज वर्किंग। एक बार ऑथेंटिकेट हो गए, आफ्टर दैट क्या वो अपना टनल बना लेता है या फिर हमेशा नेम नोड्स के थ्रू ही काम करेगा? नहीं, एक बार टनल बना लेगा, परमिशंस मिल जाएगी, देन अगर उसको क्लस्टर एक्सेस करने की परमिशन मिल जाती है तो हम्म वो नॉर्मली जैसे काम हो रहा है कि मतलब क्लाइंट को किसी को भी डेटा राइट करना है तो अगेन वो कम्युनिकेट करेगा नेम नोड से। ऑलवेज नेम नोड शुड बी अपडेटेड, हाँ देन ओनली मतलब वी एक कैन बी बार एबल टू अगर तुम्हें रेक्टिफाई। एक्सेस मिल जाएगा तो प्रोसेस तो वही रहेगा कि नेम नोड से ही जाएगा कम्युनिकेट करने। सो नेम नोड को मैं समझता हूँ कि ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन टाइप में रहता है या फिर माइक्रो सर्विस। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि होगा क्या कि अगर ऑथेंटिकेशन सर्विस काम कर रही है नेम नोड की, या फिर शेड्यूलर काम कर रही है, या फिर इसमें मल्टीपल और कंपोनेंट्स होंगे जो कि कहाँ पे राइट करना, कहाँ से रीड करना, वो सब डिफाइन करेगा कोई ना कोई कंपोनेंट नेम एग्जैक्टली नोड का, exactly. जैसे शेड्यूलर राइट? की भी बात की है तो इसमें बहुत सारे शेड्यूलर्स भी होते हैं हाँ, तो तो वो वो तो होते सब हैं। चीजें डिसाइड करने के लिए नेम नोड का काम रह गया। एग्जैक्टली तो वो ऑलवेज पिक्चर में आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए एग्जैक्टली वो नेम नोड रहेगा, टनल डायरेक्ट नहीं बना सकता, जितना मुझे समझ में लगा आ रहा है। हाँ और जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो इमेज में आपने एक डायरेक्ट पाइप बना दिया था कि भाई एक बार हो गया उसके बाद डायरेक्ट वो डेटा नोड पर भी राइट कर देगा। हाँ आई थिंक मतलब डेटा कि नोड पर राइट क्लाइंट करने की कैन फिर परमिशन नहीं होगी। डायरेक्टली क्लाइंट को, अभी अगर आप ये फिगर देखोगे ना कैसे काम कर रहा हाँ, है ना, तो तुम्हें तो हाई लेवल आइडिया हो जाएगा कि मतलब टनल कैसे बन रहा है, कैसे काम हो रहा है। तो क्लाइंट इनिशिएट राइट ऑपरेशन बाय कॉलिंग क्रिएट मेथड टू करेक्ट। मेथड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। मतलब एक क्लास है यस। फाइल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक क्लास है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, इसके बहुत सारे मेथड है तो इसे क्रिएट मेथड कॉल करता है। So distributed file system object connect to the name node using RPC call and initiate file creation. However, this file create operation does not associated any block with the file. Okay, and it is responsibility of a name node to verify that file does not exist already, and client has correct permission to create a new file. So if a file already exists or a client does not have sufficient permission to create a new file, then IO exception is thrown to the client, and otherwise operation succeed and new record for the file is created by the name node. तो मतलब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि परमिशन क्या दी है, अगर उसको है परमिशन राइट करने की ठीक सबकी। ठीक, समझ में Once आ a गया new भाई। record is name node is created, so an object of type fs data output stream is returned to the client. A client use it to write data into the HDFS and data write method is invoked. तो एक बार अगर परमिशन मिल जाती है फिर वो क्या करता है, इस वाली क्लास का एफ एस डेटा आउटपुट स्ट्रीम, इस वाली क्लास का वो एक ऑब्जेक्ट बना सकता है राइट मेथड के थ्रू, है ना? और उसके बाद once a new record is name node is created, so object is blah blah. So the fs data output stream contain dfs output stream object which looks after communication with the data node and name node while the client continue writing the data. अब देख रहे होगे कि क्लाइंट ना विद द हेल्प ऑफ इस डीएफएस आउटपुट स्ट्रीम का एक मेथड होता है डेटा की, उसके हेल्प से लगातार डेटा नोड पे राइट करने लग जाता है। अब उसका काम खत्म हो गया नेम नोड से, एक बार उसको ऑथेंटिक मिल जाती है, नेम नोड उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि तुम्हें कौन करेक्ट करेक्ट, नोड पे कहाँ कहाँ राइट करना है डेटा। समझ रहे हो? समझ गया समझ गया। सो सो ये दे रहा है दीज पैकेट्स आर एनक्यू, और ये पैकेट के फॉर्म में राइट होते हैं सारे के डेटा।
इनको data queue, Mm-hmm. which is called as data queue. So there is one more component called data streamer which consume this data queue. Data streamer also asks name node for allocation of new block, thereby picking desirable data node to be used for the replication. So now the process of replication start by creating a pipeline using data node. In our case, we have chosen a replication level 3. Hence, there are 3 data nodes in the pipeline. So the data streamer pours packet into the first data node in the pipeline. Every data node in a pipeline store packet retrieved by it and forward the same to the second data node in the pipeline. So another queue, um, acknowledge queue is like maintained by DFS output stream to store packet which are maintaining for the acknowledgement from the data node. मतलब वन अगर यहाँ राइट हो रहा है तो ये फिर यहाँ पे भी राइट करेगा, ये यहाँ पे भी राइट करेगा, और साथ के साथ ये लोग इसको एक्नॉलेजमेंट देते हैं. वंस अगर ये एक्नॉलेज हो जाता है, सब कुछ कंफर्म हो जाता है, तो ये फाइनली इसको क्लोज कर देता है. तो दिस इज अ वे यू कैन राइट द डेटा इनसाइड. एक्चुअली इस इमेज को अगर हम देखें ना, तो सारे डेटा नोड्स जो है एक दूसरे को सिग्नल भेज रहे हैं, राइट? या करेक्ट है ना? अगर कोई भी डेटा अगर राइट होने आया तो डेटा नोड जो फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, उसने पहले फर्स्ट पे लिखा, फिर सेकंड को बोला, फिर थर्ड को बोला, फिर थर्ड ने अपडेट किया कि साहब नहीं, मेरा डन हो गया या नहीं हुआ, जो भी है. एग्जैक्टली एक्नॉलेजमेंट. हाँ सेकंड को एक्नॉलेजमेंट भेजा उसने, एंड देन फर्स्ट को पहुंचा. तो मतलब मैं ये अब तक ये नहीं समझा कि उसने नेक्स्ट डेटा जो है वो सेकंड नोड या थर्ड नोड पे क्यों नहीं भेजा. एक बार में उसे पैरेलल भेज सकता था साहिब वो. तो ये उसका आर्किटेक्चर ऐसे ही काम करता है ना. पाइपलाइन अभी तो बोल रहे थे कि कैसे राइट कर रहा है, सीक्वेंशियली कैसे डेटा रीड कर रहा है, तो उसका तरीका करेक्ट. ये काम करने का वे ही है. हाँ, करेक्ट है. वो डिजाइन ही इस वे में हुआ है कि ऐसे ही करेगा वो. कोई भी तुम डेटा राइट करोगे, करेक्ट. एक ब्लॉक राइट कर दिया तब दूसरा ब्लॉक राइट करने जाएगा. मेक सेंस. ओके, सो ये काफी और ऐसे ही सिंपल है कि रीड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है. तो ये क्लासेस होती है. ये HDFS क्लाइंट लाइब्रेरी के बारे में पढ़ोगे ना और भी डिटेल में, तो तुम्हें और भी रीड राइट कैसे होते हैं. देखिए, मेटा डेटा रिक्वेस्ट टू गेट द ब्लॉक लोकेशन, तो ये सारा का सारा देता है इसको इन्फॉर्मेशन, तब ये डेटा रीड करना स्टार्ट कर देता है. तो ये हडूप के रीड एंड राइट ऑपरेशंस है. ओके, बैक. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड लाइक डेटा नोड क्या है, नेम नोड क्या है और सेकेंडरी नेम नोड क्या है. So name node basically store your metadata information, and data node actually store your actual data in it, and it will on the regular interval it will send some information like what kind of block information, अगर कोई block information लिखा हुआ है. and name node store these in the form of edit logs, तो उसके पास पता रहता है edit log की form में रहता है वो चीज. और secondary name क्या करता है, what it will do, it will take these edit logs and FSC on the regular interval it will update the name node about these things and all. Okay. Yeah. Okay, so we are going to again jump on PPT. अब इस PPT में देख लेते हैं. So data in a Hadoop cluster is broken down into a smaller unit. क्या बोला जाता है, ब्लॉक कहा जाता है. Block 128, and each block is duplicated twice for a total of 3 copy, with the 2 replicas stored on the two nodes in the rack somewhere else in the cluster. And since the data has a default replication factor of 3, so it is highly available and fault tolerant. Hadoop HDFS को fault tolerant कहा जाता है कि in case if any data node is goes down, it doesn't mean you are going to lose your data because you have already a copy. If a copy is lost because of machine failure or for example, so HDFS will automatically re-replicate elsewhere in the cluster and ensuring that. So these are the some block information about like 128 MB data we have. HDFS cluster has 2 types of node, name node and data node. Name node generally stay on a master, and data nodes are stay on a worker node. Name node manages the file system namespace. It maintains the file system tree and the metadata for all the files and directory in the tree. So name node also known as the data node on which all the blocks for a given file are located. So data node are By the way, you can ignore this question also if you want, but it's just a bullshit question. No, ask. So whenever we create any block in any kind of file system, right? So they have the metadata of the other blocks also, means where from the next block and where will be the previous block. Sorry. I disconnected. Can you come again and repeat this question? Okay. So my question is, every block have their metadata also. Correct. Means what is the previous data
and oh, sorry, previous block number or the next block number, at Hmm. least two numbers, Hmm. kind of a linked list, right? Hmm. So they also use their own memory for managing themselves, right? Hmm. uh, mm, Consider like 128 it is, so probably 8 is used for the managing themselves and 120 so is this default size for this also, or how exactly the block, or maybe you can ignore it for now. I can recheck also from my end, does not matter much. Uh, Still, I'm not getting your question properly. But, Okay. but you can first check at your end and then I'll Yeah. tell you. So एक्चुअली में Yeah. एक और बट यहाँ से एक क्वेश्चन और रेज हो जाता है जो कि मैं कवर Mm, करना चाहता हूँ. आई थिंक मे बी इट विल हेल्प टू क्लियर योर डाउट एंड ऑल दैट. please. होता है कि सपोज कंसिडर इट, ये हमारा एक, तो लेट्स कंसिडर इट, ये मेरा एक डेटा नोड है, उसमें बहुत सारी ब्लॉक्स होंगे, एम आई राइट? Correct. बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे. सो एक कंसेप्ट होता था कि मान लो कि मेरी एक फाइल है, ए है, एंड उसका साइज है 128 MB. ओके. Mm, ब्लॉक है, एक एक फाइल है मेरी, उसका साइज है 300 MB. और एक mm, फाइल है मेरा, उसका साइज है 50 MB. ऐसा mm, अगर देखोगे mm, तो ए वाला तो चलो फुली भर गया क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लॉक का साइज ये था. लेकिन अगर बी correct. वाला देखा जाए तो बी वाला रिसाइड करेगा दो तीन में. एक तो यहाँ पे रिसाइड कर जाएगा वो, ठीक है, कहीं. रिसाइड कर जाएगा 128 MB. बी वाला इसमें भी आ जाएगा. और बी वाले का 128 कितना हो जाएगा, तो 256, यानी बी वाले का यहाँ पे 44 वाला तक का आएगा. क्या बाकी का स्पेस वेस्ट जाता है कि नहीं जाता है, राइट? ब्लॉक. Yeah, yeah. तो ऐसा हडूप में होता नहीं है. यहाँ पे कुछ और फाइल भी आ सकती है, जरूरी है वो यहाँ पे सी की भी फाइल डाल सकता है. Mm, mm, कभी भी स्पेस, मतलब हडूप में ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि यू कैन नॉट मतलब स्पेसेस वेस्ट नहीं होते हैं, इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है. बट लेकिन जब प्रोसेसिंग करने गया, सपोज ए बी, सिर्फ वो ए और बी की फाइल को प्रोसेस करना चाहता था, सी की फाइल को नहीं करना चाहता था. लेकिन mm. देखा जाए तो इस ब्लॉक में बी और सी दोनों एक ही जगह लाई है, क्या वो फिर पूरा डेटा प्रोसेस करने लग जाएगा? तो यहाँ पे करना तो नहीं है, क्योंकि उसमें हाँ कुछ ना कुछ सब पार्टीशनिंग ऑफ ब्लॉक कुछ तो फंडा होगा. हाँ, तो यार यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होगा इनपुट स्प्लिट का, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा कि इनपुट स्प्लिट कैसे काम करता है. तो एक बार Okay. नेट में सर्च करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट स्प्लिट एंड ब्लॉक. Mm, तो इनपुट स्प्लिट और ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोसेसिंग पार्ट, mm, लाइक मैप रिड्यूस एंड मैप रिड्यूस डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस दिस पॉइंट इनपुट स्प्लिट. mm. तो बस अभी माइंड के लिए ये रखना कि हडूप में ना स्पेस जो वेस्ट होता ही नहीं है, वहाँ पे कोई ठीक, दूसरा डेटा आ सकता है रिसाइड कर. समझ Got it? गई बात. Mm. Okay, so till here we can stop our session. Thank you so much. I hope you liked the session. Bye bye.